گاندربل میں لوگوں نے کچھ دنوں پہلے آ کے کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ مسائل ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوکلز کچھ ایشوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ان ایشوز کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے انویٹیشن پہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے سامنے آیا ہوں بات کرنے کے لیے۔ دیکھتے کہ ایشوز کیا ہے جن کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، کون سے ایشوز کہاں کس لیول پہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر سینٹرل لیول پہ کوئی ایشو ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی ایشو ہے، وہ اٹھائیں گے۔ اگر لوکل لیول پہ کسی ایشو کے بارے میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ اٹھائیں گے۔ تو یہاں پہ اسی حوالے سے آیا تھا۔ ایک روٹین انٹریکشن ابھی سورا میں بھی ہوئی تھی، آج اسی سورا کے بعد اس وقت گاندربل میں آیا، اسی طرح سے پلوامہ، شوپیاں اور ہمارے ساؤتھ کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سی میٹنگ چل رہی ہے، کس حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے۔ اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے تو میں ورکنگ کمیٹی کا پرماننٹ ممبر ہوں۔ 2002 سے لے کے آج تک پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اس میٹنگ کا انویٹیشن نہیں ملا ہے۔ اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، میں نے آپ ہی دوستوں کے ذریعے سنا کہ کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ جیسے رپورٹ ہے کہ رولا صاحب جو ہے الگ پارٹی بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کل سے لگاتار یہ خبریں خرید کر رہی ہیں۔ کیا آپ ایم سی سے اسی لیے دوری بنائے ہوئے ہو کہ رولا صاحب اپنی پارٹی کھڑی کر دیں گے؟ میں نے نہ کسی پارٹی سے دوری بنائی ہے، نہ کسی پارٹی کو بنانے کے لیے کوئی بات کی ہے۔ میری نیشنل کانفرنس کے ساتھ، اس تنظیم کے ساتھ ایک بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جس نام سے، جس وعدے پہ لوگوں سے ووٹ لیا 2024 میں، سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے آئینی پروٹیکشن جو 370 کے ذریعے ہمیں پروٹیکشنز ملی تھی، آئینی گارنٹیز، ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑے۔ اور مینڈیٹ کا سب سے بڑی وجہ وہی ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم کام کریں، ہم ملک میں الائز ڈھونڈیں گے جن کے ذریعے ہم ایک فورس بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنی پروٹیکشنز کو واپس حاصل کریں، آئینی گارنٹیز کو واپس حاصل کر سکیں۔ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ہمارے ووٹ ہمیں اس نام پہ ملا تھا۔ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں جس نام پہ ہم نے ووٹ لیا تھا لوگوں سے، اس میں جتنے بھی سارے ایجنڈاز تھے ان پہ ہم نے کام کرنا ہے، اس وعدے پہ پورا اترنا ہے۔ ہم بی جے پی کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے ہیں ووٹ لینے کے بعد۔ ووٹ ہم اس نام پہ لے کے ہم 370 کے ذریعے جو پروٹیکشنز تھے ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ اور الیکشن کے دوران ہم یہ کہیں کہ جو بات کرتا ہے وہ بی جے پی کا ایجنڈا یہاں پہ پھیلا رہا ہے یا وہ بی جے پی کی لینگویج استعمال کر رہا ہے، اور الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم وہی لینگویج یوز کریں جو بی جے پی یوز کرتی تھی کہ ہماری لڑائی اسٹیٹ ہوڈ کی 370 کے پروٹیکشنز کی نہیں ہے۔ تو میری بات یہی ہے، میری ڈس ایگریمنٹ اسی بات پہ ہے کہ جن وعدوں پہ، پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم نے ووٹ لیا ہے، ہمیں اس پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کرنا ہے۔ ہمیں 370 کے ذریعے پروٹیکشنز جو ملی تھی ان پروٹیکشنز کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں اس ریاست میں جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کی واپسی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے اپنی لڑائی کو، بی جے پی کی لینگویج یوز کر کے اسٹیٹ ہوڈ کی لڑائی بنا کے اپنے کاز کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم وہ کاز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ہم بی جے پی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہم وہ دھوکہ لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریزرویشن کا ایشو ہے، امپلائمنٹ کا ایشو ہے، روٹین گورننس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے جو وعدے دیے گئے تھے، روٹین گورننس کے جو وعدے دیے گئے تھے، امپلائمنٹ کے جو وعدے دیے گئے تھے، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آپ مجھے بتائیے، اگر ہم نے نہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کیا، 370 کے حوالے سے ہم نے کوئی کام نہیں،
हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पर काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी। वो सवाल तभी का था और तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल में। वह वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चली गई। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल का। तो 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की। वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीजों के लिए मेरे डिसएग्रीमेंट। आम लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो मिल्कियत जमीन है उन पे हमने कंस्ट्रक्शन की हुई थी, उसके बाद और यहाँ पे इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट है, 1 साल पहले ही जिस गवर्नमेंट को हमने, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने वोट दिया था, इस वक्त सबसे अव्वल पे वो होने चाहिए थी इनकी प्रोटेक्शन के लिए। वो कहाँ है? अगर हमने वोट लिया, जो बुलडोजर यूपी में चलता है वो बुलडोजर हम कश्मीर में चलने नहीं देंगे। अगर हमने वोट लिया कि यूपी में जो ज्यादतियां होती है कम से कम हम कश्मीर में वो ज्यादतियां होने नहीं देंगे। आज जब गांदरबल में वही बुलडोजर चलता है तब हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जब जिन्होंने इसी प्रोटेक्शन के लिए, इसी दिफा के लिए, इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट किया? हो सकता है कहीं पे एनक्रोचमेंट हुई हो, मगर अक्सर जगहों पे जहाँ पे मैंने भी यहाँ पे अभी बात की लोकल्स के साथ, कोई एनक्रोचमेंट नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं, कानून को बालाए ताक रख के एक बुलडोजर चलाया गया। तो अगर इस वक्त भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आपके डिफेंस के लिए ना हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ना हो, तो हमने वोट ही क्यों दिया? तो जो निजाम यूपी में चल रहा था वही निजाम यहाँ पे एलजी के जरिए चल रहा था, वही बुलडोजर तब भी चल रहा था, वही बुलडोजर आज भी चल रहा है। अगर साहब यूपी सीएम ने कहा अगर रूला ये बयानबाजी अपनी लाइट के लिए रिजाइन नहीं दे पा रहे हो। अब जो बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई उसूलों पे मबनी है, कुर्सी के लिए नहीं है। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में न प्रिंसिपल्स है, न वैल्यूज है, न डायरेक्शन है। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो, अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की जिंदगी में, सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें पार्टी के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करोगे सर? पार्टी के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन का मसला हल नहीं करती है, मैंने, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, मैंने खुलासन ये कहा कि आप रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, इसको अना का मसला मत बनाइए। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आप थोड़ा पीछे। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने कभी 6 महीने मांगे, कभी आपने 2 महीने मांगे। इलेक्शन, बड़गाम के बाई इलेक्शन से पहले आपने कहा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। वो 4 दिन भी गुजर गए, 1 साल भी गुजर गया। अब आप ये मसला हल कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि ये अन्ना का मसला है, मैं इससे पीछे हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो आप कहते थे कि 2 दिन में हम काम करने वाले हैं बाई इलेक्शन से पहले, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। चलिए, मैं ही इससे पीछे हटता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले के दरमियान हूँ, शायद ये आपके लिए अन्ना का मसला है, मैं इन स्टूडेंट से दूर हटता हूँ, इस इशू से दूर हटता हूँ।
एक महीने के अंदर अंदर आप इन स्टूडेंट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी कॉन्फिडेंस पे लीजिए, उनको मेरे खिलाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मगर उनका मसला हल कीजिए। अगर एक महीने के बाद भी अगर ये मसला हल नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल लड़के लड़कियां बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है, वक्त निकलता जा रहा है, हर महीने आप देखते हैं कि वैकेंसीज फिल होती है। तो ये अर्जेंसी का मसला है। अगर एक महीने के बाद ये इशू अनएड्रेस रहा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना हो। साहब, आपका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप बदलेंगे, लीडरशिप को बदलेंगे, यानी कि उनके जितने भी लोगों के साथ वादे किए गए हैं वो उन पे आप मतलब अपनी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्हें पूरा करने में मजबूर करेंगे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे? अगर वो अपने उसूलों की पासदारी ना करे, मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ वो पार्टी के उसूल है, अगर वो मैनिफेस्टो पे अमल ना करे, मैं जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ वो पार्टी का मैनिफेस्टो है, मेरी तो आप बात छोड़ दीजिए, वो लोगों का ट्रस्ट गवा दे, और वो ट्रस्ट गवाना सबसे बड़ा नुकसान है। मेन स्ट्रीम पे अगर 2024 में लोगों ने ट्रस्ट किया, ये ट्रस्ट बहुत बड़े डेफिसिट के बाद आया, बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेन स्ट्रीम पे फिर से ट्रस्ट किया। अगर इस बार वो धोखा हो यहाँ से या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की होगी, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी, और मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़ो। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों को मिला, लोगों के जरिए मिला है, इसको नहीं छोड़ना। प्रोजेक्ट एक साल के अंदर अंदर, अगर आपने देखा हो, जो ही मैं पहली बार मिला हेल्थ मिनिस्टर से, 2-3 मिनिस्टर से मिला, होम मिनिस्टर से भी मिला बिजनेस के हवाले से, हेल्थ मिनिस्टर से मिला, मैंने उनसे सीटी स्कैन मांगे, सीटी स्कैन मशीन्स मांगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन्स मुहैया किए जाए। उनमें से 2 उन्होंने अप्रूव किए, एक बड़गाम के लिए और एक गांधरबल के लिए। गांधरबल में इंस्टॉलेशन का काम तकमील पे पहुंच रहा है, जहां तक मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है। 1 महीने के अंदर अंदर जो इंस्टॉलेशन का काम जो है वो तमाम हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो सीटी स्कैन मशीन वो जो है वो अप्रूव हो जाएगी। बाकी के प्रोजेक्ट्स आपको बाकी वो R&D डिपार्टमेंट का काम, वहाँ पे वाइडनिंग का काम है ना।